Hello students, in this video we are going to discuss the methods of preparation of halogenes. So the first method is Hunt's Diecker reaction. The question can come as how can you synthesize aryl halides from silver salt of carboxylic acid. Silver salt of carboxylic acid से हमें ये पता चलेगा कि in this reaction we can solve this question by using Hunt's Diecker reaction. Haloalkanes में भी हमने ये reaction पढ़ी थी. The utility of this reaction is that we are taking silver salt of carboxylic acid and we can change this R group as alkyl or aryl. अगर हमें alkyl halide बनाना है we can take R as alkyl, for example CH3. अगर हमें aryl bromobenzene बनाना है तो we will take R as aryl group. For example, I have here taken benzene ring. So silver salt of benzoic acid, it will form bromobenzene. The another utility of this reaction is used as chain descending series reaction. Means जो product है it has one carbon less than एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में बेंजीन रिंग के साथ C एक और कार्बन लगा है, बट in product this COO is released as CO2. So this is chain descending reaction. So the other question is other method of preparation is Gattermann and Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction और Gattermann reaction में हम दोनों में यूज़ करते हैं benzene diazonium salts which are called benzene diazonium chlorides और simply called diazonium salt. N2 diazo group होता है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, right? So in these two reaction we are using copper. If copper salts of particular halide, अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो we will take copper chloride. If bromobenzene बनाना है तो we will take copper bromide in the presence of HBr and copper chloride in the presence of HCl. It will form chlorobenzene and it will form bromobenzene. Sandmeyer reaction की ही जो advanced version है that is Gattermann reaction. In Gattermann reaction pure copper metal is taken instead of its salts. In the presence of HCl it will give chlorobenzene. In the presence of HBr it will give bromobenzene. So the next is Walsh-Schiemann reaction. The question can come as what is Walsh-Schiemann reaction or how can you prepare fluorobenzene by using Walsh-Schiemann reaction. Here we will take diazonium salt in the presence of tetrafluoroboric acid. सबसे पहले क्या होगा, we will form there is the formation of this salt on heating. ये जो हमें पता है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं उनका ये जो बेंजीन के साथ जो बॉन्ड है इट इज़ क्वाइट रिएक्टिव, बहुत जल्दी टूट जाता है, तो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस F जो है F विल मेक बॉन्ड विद बेंजीन रिंग टू फॉर्म फ्लोरोबेंजीन. So this is the special method for the synthesis of fluorobenzene. So the next method of preparation is for the preparation of nuclear compounds, nuclear halogen compounds. So what are nuclear aryl halides? Nuclear aryl halides वो होते हैं जिसमें जो बेंजीन है उसके डायरेक्ट हैलोजेंस लगी होती हैं. ऐसे ही हमारे पास साइड चेन हैलाइड्स थे. साइड चेन हैलाइड्स में हमारे पास जो हैलोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन के साथ नहीं लगी है, वो उसके साथ बेंजीन के साथ जो साइड चेन लगी है वहाँ हैलोजेंस लगे होंगे. सो न्यूक्लियर हैलोजनेशन वी हैव टू ऐड हैलाइड और हैलोजन डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट हैलोजनेशन और न्यूक्लियर हैलोजनेशन. इसमें हमें इस रिएक्शन में आपने ये याद रखना है कि whenever any aromatic ring is treated in the with halogen in the presence of these catalysts, these are Lewis acid catalyst, right? Lewis acid catalyst कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? फेरिक्लोराइड, AlCl3, BF3, ये भी Lewis acid catalyst हैं. ये catalyst की presence में हम ये reaction carry out करते हैं to form chlorobenzene if we are using chlorine, to form bromobenzene if we are using bromine. So the reaction is electrophilic substitution. Electrophilic substitution क्यों है पहले ये देख लेते हैं. अब we have a benzene ring. In benzene ring there is 3 pi electron, means 6 pi electron density. Due to this 6 pi electron density benzene ring
is experiencing, we can say there is negative charge density due to these 6 pi electrons above the plane of ring and below the plane of ring. अगर हमने इसमें कोई भी रिएजेंट डालना है तो इसके खुद के ऊपर, रिएजेंट के ऊपर खुद कौन सा चार्ज होना चाहिए? ऑब्वियसली पॉजिटिव, because here is 6 pi electron negative charge density, so the reagent will be, attacking reagent should have positive charge. So positive charge है, negative charge को attack कर रहा है, तो positively charge species को हम क्या कहेंगे? Electrophile. means electron means negative charge, phile means loving, means negative charge loving species we are adding to the benzene ring. means benzene के ऊपर कौन सी चीज़ें अटैक कर सकती हैं? electrophiles. अब we know all the carbon atom of benzene ring has H. so if I have to add an electrophile, तो ऐसे नहीं होगा कि electrophile ऐड हुआ. यहाँ देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐड कराती हूँ इस कार्बन पे, तो इस कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल. इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल आएगा, H को निकाल के उसकी जगह पे खुद लग जाएगा. सो द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक, बिकॉज हम वी आर एडिंग इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन क्यों का है? बिकॉज वी आर सब्स्टिट्यूटिंग E with H. in place of H we are adding electrophile. so this is electrophilic substitution reaction. so all the aromatic hydrocarbons will always undergo electrophilic substitution reaction. all right, so let us discuss why we are using the catalyst in these reactions. as I said earlier, these reactions occur only in the presence of these catalysts. so the function of these catalyst is to carry the halogen to the aromatic hydrocarbon. ये halogen को aromatic hydrocarbon तक लेके जाती हैं. so they are called halogen carriers. इनको halogen carriers कहते हैं. अब without halogen carriers reaction क्यों possible नहीं है? अब जैसे मैंने पहले डिस्कस करा कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, वी आर एडिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल. कंसीडर वी आर फॉर्मिंग क्लोरोबेंजीन एंड वी नो इन क्लोरीन मॉलिक्यूल ईच Cl atom has 3 lone pair on it. so these 2 Cl are already negatively charged, slightly negative charge. The charge density on these is negative charge density due to these 6 electrons, right? so already benzene ring has 6 pi electron density, so negative charge will never attack on a negative charge. so हम क्या करेंगे? we will add a species or a reagent which make this one of this Cl as deficient. तो हम क्या करेंगे? कुछ ऐसी चीज़ डालेंगे जो Cl2 मॉलिक्यूल में से वन ऑफ द Cl को, एक Cl को डेफिशिएंट कर दे. तो हमने उसमें डाले हैलोजन कैरियर्स, ल्यूइस एसिड कैटालिस्ट. अब ये जो ल्यूइस एसिड कैटालिस्ट हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. कैसे? दे आर फॉर्मिंग 3 बॉन्ड, ईच बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन. सो देयर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम. इट इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टेट रूल इज़ नॉट ओबेइंग. ऑक्टेट रूल कहता है कि कंबाइनिंग एटम्स, आफ्टर कंबाइनिंग ईच ऑफ द एटम शुड हैव नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन और कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए. बट इन AlCl3 द सेंट्रल एलिमेंट हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन. इट इज़ शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो क्या होगा कि जो मैकेनिज़्म है, अब मैकेनिज़्म के बेसिस पे इसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा? जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इट विल रिएक्ट विद AlCl3 बिकॉज इट इज़ डेफिशिएंट. इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या करेगा? Cl बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ेगा, Cl ले लेगा एज Cl नेगेटिव. ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये Cl अपने साथ लेके जा रहा है, एज Cl नेगेटिव जा रहा है. तो ये वाला Cl क्या बन जाएगा?
पॉजिटिव। अब हमारे पास अदरवाइज हैलोजन्स को हम ये कभी नहीं देखते हैं कि हैलोजन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रही है, ऐसा कभी नहीं होता। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट इट एक्सेप्ट Cl एज Cl नेगेटिव, मीन्स इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ये Cl अपने साथ लेके जा रहा है इसके पास, बिकॉज इट इज़ डेफिशिएंट, इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो लीविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस Cl। अब हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज Cl बन गया विच अदरवाइज इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस Cl पॉजिटिव कैन ईजिली अटैक, जैसे हमने यहाँ पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज कैन ईजिली अटैक ऑन 6 pi इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। अब हमारे पास Cl पॉजिटिव बन चुका है, इट विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के पास ये जो 6 कार्बन एटम्स हैं किसी के ऊपर भी आप Cl लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कार्बन के ऊपर इसका अटैक शो करा है, तो H तो सभी कार्बन के पास है, लेकिन मैंने एक H को निकाल के ऐसे लिखा है। अब हम इन 2 कार्बन के डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा रहे हैं, इन 2 में से इस कार्बन को तो कुछ मिल गया, Cl मिल गया, इस कार्बन को कुछ नहीं मिला, उसका पाई बॉन्ड भी चला गया इस Cl के पास बॉन्ड बनाने के लिए, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वाला C जो है ये हो जाएगा डेफिशिएंट। इट इज़ कॉल्ड कार्बोकटाइन, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब लेटर ऑन हम देखेंगे कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये जो बना है इट विल अंडरगो, इट इज़ स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ऐसे रेजोनेंस में चला जाएगा। ड्यू टू रेजोनेंस इट इज़ स्टेबिलाइज्ड, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो रहा है सारे कार्बन एटम्स के ऊपर ऑफ द बेंजीन रिंग, राइट। सो वी कैन से द कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज़ स्टेबिलाइजिंग। सो अगर स्टेबल हो रहा है बनने के बाद तो ये ज़रूर बनेगा, जैसे मैंने यहाँ इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करी हैं। तो अगले स्टेप में क्या होएगा, जो सबसे पहले हमारे पास ये जो कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बना है इट विल रिलीज़, ये क्या करेगा अपना H निकाल देगा। अब H कैसे निकालेगा, 2 तरीके हैं, एज H प्लस भी निकल सकता है, H नेगेटिव भी निकल सकता है, बट वी विल रिलीज इट एज H प्लस। क्यों, क्योंकि अगर ये H प्लस निकलेगा तभी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पीछे दे के जाएगा। पॉजिटिव जा रहा है ना, इट मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के जा रहा है, क्योंकि ये कार्बन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वही इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। अगेन द एरोमेटिक करेक्टर ऑफ द बेंजीन रिंग इज रीस्टोर्ड, यहाँ बेंजीन रिंग का एरोमेटिक करेक्टर नहीं है। सो द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। सो हमने बात ये याद रखनी है कि जो बेंजीन हैं दे विल ऑलवेज अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि ये खुद नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी है, तो इस पर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ही अटैक कर सकती है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो बेंजीन रिंग हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, दे विल ऑलवेज अंडरगो सब्स्टिट्यूशन नॉट एडिशन, राइट। तीसरा हमने ये याद रखना है कि जो हैलोजन्स हैं दे हैव 3 लोन पेयर ऑन इट इन हैलोजन, ईच एटम हैज़ लोन पेयर। ऑलरेडी नेगेटिव हैं तो बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं, सो वी नीड सम स्पीशीज़ विच कैन मेक दीज वन ऑफ दीज Cl एटम एज पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसमें एलिमेंट रिएजेंट डालेंगे जो क्लोरीन मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिक वे में तोड़ता है। अनसिमेट्रिक वे में मीन्स उसको एज Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बना लेता है। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन में हमने क्या करना है, अगेन हैलोजन डालनी है, बट अब हम क्या करेंगे, रिएजेंट चेंज करेंगे। अभी हमने देखा कि अगर हम Cl2 डालते हैं, जैसे मेरे पास कंसीडर आई हैव द रिएक्शन, आई हैव बेंजीन रिंग with methyl group on it and I have to add Cl2. If I add Cl2 in the presence of this, it will direct the Cl group to the ring either on ortho or on para position. ऑर्थो और पैरा क्यों है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं Cl2 डालूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जो Cl2 हम डाल रहे हैं इट विल नॉट डायरेक्ट टू द बेंजीन रिंग, इट विल गो टू द साइड चेन, यहाँ लगेगा, राइट।
सो कंडीशन चेंज करने पे हमारा प्रोडक्ट भी चेंज कर गया। सो अगर हम Cl2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट विल अटैक द साइड चेन। अगर हम Cl2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट, इट विल गो डायरेक्टली टू द रिंग, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस ग्रुप विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। आने वाला Cl ऑर्थो और पैरा पे जा सकता है या फिर मेटा पे जा सकता है, राइट। इफ़ आई हैव इथाइल ग्रुप, सो जो Cl2 का Cl है वो सिर्फ सेकंड वाले पे ही लगेगा, बेंजाइलिक कार्बन। इसको बेंजाइल क्लोराइड क्यों कहा है? बिकॉज ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड